جتنی غربت ہم نے دیکھی ہے نا، عابد علی کا گھر بہت ہی ایک غریب گھر تھا. آئی گرو اپ ویئرنگ لنڈے کے کپڑے، اور یہ گرو اپ کا مطلب میں کہہ رہی ہوں 18 سال کی عمر تک میں نے بہت ہم لوگ برے حال ہی دیکھے ہیں، اور میں نے بہت مشکل سے کام کیا ہے. السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل. دوستو آج میں آپ کو پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ان شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی. اور آج پاکستانی شوبز انڈسٹری ان کے بغیر ادھوری ہے، اور انہوں نے اسی شوبز انڈسٹری میں اپنا نام بنایا، اپنا مقام بنایا اور کروڑوں روپیہ بھی کمایا. اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے شوبز انڈسٹری کو جوائن کر لیں، بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور آج ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایمان علی کی. دوستو ایمان علی پاکستانی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، اور آج ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کافی حیران ہوں گے. جیسا کہ پاکستان میں جب بھی کبھی بڑے بجٹ کی فلم بنتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایمان علی کو آفر کی جاتی ہے، جیسے کہ لندن نہیں جاؤں گا، پنجاب نہیں جاؤں گی، اور بھی بہت ساری بڑی بڑی فلمز ہیں جن کے لیے سب سے پہلے ایمان علی کو کاسٹ کیا گیا. لیکن اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ساری فلموں کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، لیکن بہت عرصے بعد ان کی ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے ٹچ بٹن. ان کی زندگی کے بارے میں آپ جب بھی دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی بڑی گاڑیوں میں یہ گھومتی ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں ان کے پاس، اتنے خوبصورت ڈریسز یہ پہنتی ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آیا، کیسے کمایا؟ لیکن آپ لوگ ان کی ہسٹری کے بارے میں شاید نہیں جانتے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی زندگی، ان کا بچپن بہت ہی غربت میں گزرا، انتہائی مشکلات میں گزرا. ایمان علی پاکستان کے مشہور اداکار عابد علی مرحوم کی صاحبزادی ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت میں ٹی وی اور فلم پر خوب راج کیا، خوب پیسہ کمایا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے سٹار کی صاحبزادی نے اپنا بچپن غربت میں کیوں گزارا؟ کیونکہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ ہم پر بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے 18 سال کی عمر تک انتہائی غربت دیکھی. وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ شوبز انڈسٹری میں آنے سے پہلے میں لنڈے سے کپڑے لے کر پہنا کرتی تھی، لیکن جب میں نے شوبز انڈسٹری کو جوائن کیا تب جا کر میرے حالات بدلنا شروع ہوئے. ایمان علی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ 10 سالوں میں کوئی ایک فلم کرتی ہیں تو اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے مینٹین کرتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے ماڈلنگ کے دنوں میں پائی جوڑ کر زمینوں پر انویسٹ کیا، اور آج وہ زمینیں میری کروڑوں روپے میں ہیں. آغا علی بتاتے ہیں کہ میرے والد اپنے دور کے بہت بڑے ایکٹر اور بہت اچھے انسان تھے، ہمارے پاس زندگی میں سب کچھ تھا، لیکن پھر اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم سے سب کچھ چھن گیا. والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد محبتیں، آسائشیں، سب کچھ ختم ہو گیا. میں، میرے بہن بھائی اور میری والدہ بہت مشکلات سے گزرے اور ہم اپنے نانا کے گھر شفٹ ہو گئے، اور وہی ہمیں سپورٹ کرتے تھے. لیکن چند سال بعد نانا کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد میرے ماموں وسیم عباس اپنی دوسری شادی کے بعد کافی بدل گئے اور انہوں نے ہم پر توجہ دینا چھوڑ دی، اور میری والدہ کو کچھ سمجھ نہ آیا اور ہم کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے. لیکن کرائے کے گھر بھی ہم اکثر چینج کرتے رہتے، کیونکہ کبھی کرایہ نہ ہوتا اور کبھی بل کے پیسے نہ ہوتے، اور یوں میرا بچپن 8-10 گھروں میں بھٹکتے بھٹکتے گزرا. اسکول جانے کی فیس تک نہ ہوتی، کبھی 2 ماہ جاتے اور کبھی 3 ماہ نہ جا پاتے. میرے کزنز کے پاس سب کچھ تھا، اس لیے وہ ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ہم سے بہت تنگ ہوتے تھے. جب کالج جانے کا وقت آیا تو میری والدہ نے کہا کہ پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی کام کرو. لیکن چونکہ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اسکالرشپ پر اپنی تعلیم مکمل کی. مجھے اپنے والد کی بہت یاد آتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ اگر ابو ہوتے تو حالات کتنے مختلف ہوتے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا، اور میں رو رو کر اللہ سے بس یہی شکوہ کرتا کہ کیوں ان کو اتنی جلدی بلا لیا.
मैं बस अपने अब्बू की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता था। हालांकि पूरा खानदान इसी शोबिज इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी गुर्बत की वजह से कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था और इस फील्ड में कनेक्शंस होने के बावजूद भी कोई मुझे सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। और फिर एक दिन मैं जेब में 570 रुपए लेकर कराची चला गया और वहां पर एक कमरे में रहने लगा, जहां पर मेरे पास लेटने के लिए तकिया तक न था। मैंने काम हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से किसी ने मुझे मुंह ना लगाया। मैं ये सोचता था कि चलो खानदान वालों ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मेरे वालिद के साथ काम करने वाले जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे वो मुझे इस फील्ड में वेलकम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मुझे लगा कि मैं इसी कमरे में भूखा प्यासा मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर मुझे छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। थोड़ा थोड़ा काम करते करते और रिजेक्शंस का सामना करते करते आखिरकार मैं हीरो बन ही गया। और आज आगा अली एक ड्रामे के इतने पैसे लेते हैं कि जितने एक ऑफिसर सारी जिंदगी नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पर लेता है। नेक्स्ट है फेरोज खान। फेरोज खान को कौन नहीं जानता। ड्रामा सीरियल खानी से करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला ये शख्स आज भी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की वजह से लोगों के दिलों और दिमाग पर छाया हुआ है। फेरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे और हम बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। सबकी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। माँ बाप बहुत मुश्किलों से पैसा जमा करके मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक किसी मजबूरी की वजह से वो फीस भी मेरे वालिद नहीं दे पा रहे थे और मुझे वो महंगा स्कूल छोड़ना पड़ा और एक छोटे मोटे बेकार स्कूल में डाल दिया। बेशक मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से था, लेकिन मैं शुरू से ही अच्छे और बड़े स्कूलों में पढ़ा था। लेकिन अब मेरा इन छोटी छोटी क्लासों में आकर दम घुटता था। इसलिए मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल नील हो गया था। और अब मैं सोचता था कि ना अब मैं पढ़ सकूंगा और ना ही बड़ा आदमी बन सकूंगा और अपने वालिद की तरह गुर्बत की चक्की में ही पिसता रहूंगा। और फिर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरी बहन हुमायमा मलिक ने कदम आगे बढ़ाया और शोबिज में काम करना शुरू किया। वो शोहरत की बुलंदियों को छू गई और घर के हालात यकदम बदल गए। लेकिन मुझे फिर भी लगता था कि पैसा तो आ गया, लेकिन मुझे लाइफ में खुद कुछ बनना है। और फिर हुमायमा की वजह से मुझे शोबिज में चांस मिला और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज मैं शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। नेक्स्ट है सादिया इमाम। सादिया इमाम का शुमार 90s और 2000 की बेहतरीन अदाकाराओं और मॉडल्स में होता है। इनकी खूबसूरती के तो सभी दीवाने थे। इन्होंने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग में अपने पंजे गाड़े, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये खूबरू हसीना एक इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने अपनी अनगिनत ख्वाहिशात का गला घोंटा लेकिन ख्वाबों को जिंदा रखा। सादिया के वालिद एक मजदूर थे और इनकी वालदा कपड़े सिलाई करती थी। सादिया का बचपन बहुत ही तंग दस्ती में गुजरा। इनको शोबिज इंडस्ट्री में आने का शौक भी था और इनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। वो रावलपिंडी से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने शुरू में इस्लामाबाद स्टूडियो से शोबिज में काम करने के लिए काफी धक्के खाए, लेकिन किसी ने उनको खास लिफ्ट न कराई। यही वजह है कि शोहरत हासिल करने के बाद जब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से उनको किसी काम की ऑफर की जाती तो वो साफ इनकार कर देती थी। इनको नबीला ने मॉडलिंग की दुनिया में मुतारिफ कराया। अरूज मिलने के बाद इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। वो इतनी बेहतरीन अदाकारा थी कि उन्होंने लगातार 5 साल बेस्ट एक्ट्रेस का लक्स स्टाइल अवार्ड जीता और उसके बाद जर्मनी में सेटल एक अमीर तरीन शख्स से शादी कर ली और अब वो अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। खलीलुर रहमान कमर को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल जैसे मशहूर तरीन ड्रामों के राइटर हैं, बल्कि शोबिज इंडस्ट्री की मायानाज शख्सियत है, क्योंकि ये अक्सर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। आज इनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत सब
कुछ है, लेकिन ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि इनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब खानदान से है और इनके वालिद मजदूरी किया करते थे। खलील साहब बताते हैं कि मुझे बचपन से ही लिखने का और राइटर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बा इस काम के बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि इस मुल्क में राइटर का कोई मकाम नहीं होता। अक्सर मैंने लिखने वालों को गुर्बत की चक्की में पिसते हुए देखा है। वो चाहते थे कि मैं बैंकर, डॉक्टर या इंजीनियर बनकर खानदान को गुर्बत के अंधेरों से निकाल सकूं। इसलिए मेरा लिखने का ख्वाब अंदर ही अंदर दब कर रह गया था। मैं एक गरीब तरीन मोहल्ले में रहता था और देर तक पढ़ाई करने के लिए मैं रात को छत पर बैठकर चांद की रोशनी में पढ़ता था। चूंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए मैंने अपनी सारी तालीम स्कॉलरशिप पर मुकम्मल की और उसके बाद मुझे बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल गई। हालात बेहतरी की तरफ जा ही रहे थे कि बैंक में किसी झगड़े की वजह से मेरी नौकरी चली गई और हम फिर से गुर्बत का शिकार हो गए। बात फाको तक जा पहुंची और मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहते। फिर मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में राइटर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। मैंने अपनी जगह बनाई और आज मैं पाकिस्तान का हाईएस्ट पेड राइटर हूं। मैं एक सीरियल का 50 लाख रुपए लेता हूं और इतने पैसे पाकिस्तान में कोई राइटर नहीं लेता। आज उनका एक नहीं बल्कि कई आलीशान बंगले और बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो अपने पुराने मोहल्ले को नहीं भूले और अक्सर वहां पर पाए, निहारी, चने वगैरह खाने जाते रहते हैं। नेक्स्ट है फुरकान कुरैशी। फुरकान कुरैशी जब बहुत छोटे थे तभी इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और इनके वालिद बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन बदकिस्मती से जब फुरकान ए लेवल कर रहे थे तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद साहब जेब में सिर्फ 1200 रुपए छोड़कर गए, यहां तक के कफन दफन का इंतजाम भी मोहल्ले वालों ने किया। फुरकान कहते हैं कि सरकारी घर भी छिन गया और मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई छोड़कर जॉब करना शुरू कर दी और मुझे पालने लगी, लेकिन इसकी तनख्वाह बस इतनी ही थी कि घर का किराया और बिल ही दे पाते। जहां तक खाने पीने की बात है तो हम ज्यादातर फाके ही काटते। मैं भी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई हुनर, लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक्टर बनना चाहता था। लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी जिसके तन पर कपड़े भी फटे और पुराने होते थे, उसको शोबिज में काम तो ना मिला, लेकिन ढेरों जलालतें और ख्वारियां जरूर मिली। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत धक्के खाए, बहुत जलील हुआ, लेकिन काम ना मिला। गुर्बत और फाकों की वजह से मैं इतना कमजोर हो चुका था कि जब मैं शर्ट पहनता तो यूं लगता कि हैंगर पर लटकी हुई है। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि पेट भरकर खाना ही नसीब ना होता। अगर किसी ऑडिशन के लिए जाना होता लेकिन किराया ना होता तो मैं अपने दोस्त से इसकी पुरानी फटीचर मोटरसाइकिल मांग कर ले जाता। फिर 10 साल जलीलो ख्वार होते होते छोटे मोटे रोल मिलने लगे। पहले तो यही रोल मिलते कि ऑफिस में चाय रख दी, लेकिन फिर कुछ बेहतर रोल्स मिलने लग गए और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और पहले कभी मैं किसी की पुरानी एफएक्स भी देखता तो अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे यही दिला दे, लेकिन आज मेरे पास महंगी तरीन गाड़ियां हैं और एक खूबसूरत चाहने वाली बीवी है और वो सब कुछ है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये वो स्टार्स थे जिन्होंने अपना बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपने ख्वाबों को बिल्कुल मरने ना दिया और अपने ख्वाबों को देखते रहे, उसकी जस्तजू में दिन रात मेहनत करते रहे। तो मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करो और इसमें काम करो। मेरा बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग गुर्बत में आंख खोलते हैं, उनके माँ बाप गरीब होते हैं, उनका खानदान इंतहाई गुर्बत में अपना वक्त गुजार रहा होता है, लेकिन उनके बच्चों में कुछ कर दिखाने की जस्तजू होती है और वो फिर उस जस्तजू में लगे रहते हैं और एक दिन आता है कि वो नाकामियां आपसे जान छुड़ाकर थक हार कर पीछे हट जाती हैं और वो कहती हैं कि जाओ, कामयाबियां तुम्हारी राह दिख रही हैं, और यूं वो कामयाब हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे होंगे, लेकिन वो अपने ख्वाबों को कभी नहीं देखते, अपने ख्वाबों के पीछे कभी नहीं जाते। एक बात मैं अक्सर लोगों से पूछा करता हूं कि यार इतनी जिंदगी में कभी एक बार भी रोकर अपने अल्लाह से मांगा है? कभी रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के आगे ये बात कही है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, या अल्लाह मेरा नसीब बदल दे? बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किल तरीन वक्त से गुजरते हैं, हर तरह की मुश्किल देखते हैं, कभी भी उन्होंने अपने रब से मांगा ही नहीं होता।
میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اللہ سے رو رو کر مانگی اور وہ میرے رب نے مجھے دے دی. اسی طرح سے میں آج آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو اگر بدلنا ہے تو اپنے خوابوں کو اونچا رکھو, اپنے مقاصد اونچے رکھو اور اپنے رب سے اس کی جستجو کرتے رہو, اپنے رب سے وہ مانگتے رہو. ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.